All the children come here. All of you. Kabir, you come here. Viraj, are you? Viraj, come. Bhavin, where are you? Viraj, come. You're not feeling well? Okay, you rest. Okay, everyone. Yes. 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 Is Viraj? Is Viraj? Okay, good. Navya, you're not coming? Okay, you sit there. Where is Arna? Arna is there. Okay. All right. Please repeat, huh? Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayam udirayet nashta prayeshva bhadreshu nityam bhagavat sevaya bhagavati uttama shloke bhaktir bhavati naishtiki krishnaya vasudevaya devaki nandanaya cha nanda gopa kumaraya govindaya namo namaha. Hare Krishna. So today we will discuss two chapters, chapter 9 and chapter 10, Srimad Bhagavatam, Canto 5. Yeah, are you okay, Arjun? You're not well? Have you got cold? Okay, good. All right. So children, if you hear carefully, then you can also repeat, right? Yes? Viraj, you also hearing us? Okay. You also hear us carefully and then you can repeat. Yeah, good boy. Okay. So who's got phone? On whose phone you will look at the verse? Yes, Arna? Yeah, give them a phone. You share a phone among yourself, children, so that you can look at the verse together. Yeah, Kabir, you also get a phone. Maybe Kabir and Lagan, or you get a phone. You should look at the verse, and when I say the word, you can repeat the meanings also. Yeah, okay, please repeat. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Naham Vishanke Surraj Vajran. Naham Vishanke Surraj Vajran. Natryaksha Shulan Nayamasya Dandat. Natryaksha Shulan Nayamasya Danda. Nagnarka Soma Nilavet Pastrat. Nagnarka Soma Nilavet Pastrat. Shanke Brisham Brahma Kulavana. Makulavamana
शंके भृशं ब्रह्मकुलावमानात्. शंके वृषं ब्रह्मकुलवा. Word by word translation. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Please repeat. Na, not. Aham, I. Vishanke, am afraid. Suraraj Vajrat, from the thunderbolt of the King of Heaven, Indra. Na, nor. Tryaksha Shulat, from the piercing trident of Lord Shiva. Na, nor. Yamasya, of the superintendent of death, Yamraj. Dandat, from the punishment. Na, nor. Agni, of fire. Arka, of the scorching heat of the sun. Soma, of the moon. Anila, of the wind. Vittapa, of the honor of riches. Kuvera, the treasure of the heavenly planets. Astrat, from the weapons. Shanke, I am afraid. Grisham, very much. Brahmakula, the group of the Brahmanas. Avamanat, from offending. So, okay, translation also. Please repeat the translation. Translation by Srila Prabhupada. Srila Prabhupada ki. Okay, children, repeat loudly. My dear sir, I am not at all afraid of the thunderbolt of King Indra, nor am I afraid of the serpentine piercing trident of Lord Shiva. I do not care about the punishment of Yamraj, the superintendent of death, nor am I afraid of fire, scorching sun, moon, wind, nor the weapons of Kuvera. Yet I am afraid of offending a Brahman. I am very much afraid of this. Yeah. Are we afraid of this? Yeah. Yeah. So this is very important to understand. अब इसको समझने की कोशिश करते हैं. Right? You understand Hindi. I'll repeat in English also. Right? So this is spoken by King Rahugan. And that king is saying to Jad Bharat, to the saintly person Jad Bharat, what he's saying is that, my dear sir, I am not afraid of Indra's Lord. You know, Indra, who is the king of heavens, and his weapon is thunderbolt. So I am not afraid of that. See? Then he says, I'm not afraid of Lord Shiva's Trishul. You have seen trident of Lord Shiva? Who, you all know who Lord Shiva is? Who doesn't know who is Lord Shiva? You know Lord Shiva? You know Lord Shiva, children? Yeah. Yeah, you should know Lord Shiva. Okay, so Lord Shiva, his trident, he says, I'm not afraid of that. When Lord Shiva gets angry, he uses his trident. And it's serpentine, it's piercing. There are snakes around the trident. And it's piercing. Once it hits you, it just goes through the body. It can destroy you completely when Lord Shiva gets angry. So he carries that trident.
So he says, I'm not afraid of Indra's thunderbolt. I'm not afraid of trident of Lord Shiva. Then what else he's saying? I'm also not afraid of Yamraj's dandat, punishment of Yamraj. Who is Yamraj? You know who is Yamraj? Okay. Yamraj is a personality who is responsible for giving us punishment for our sinful actions. If we perform any sinful activities, Yamraj will give us the punishment. You know, his messengers will come and they are very scary. Very scary. Even just the vision of them will scare you off. So we don't commit any sinful activities. Yeah. We are always mindful of not committing any sins. Otherwise, Yamraj's messengers will come and they are very scary. Yeah? So he's saying, I'm not scared of Indra's thunderbolt. I'm not scared of Lord Shiva's trident. I'm not scared of Yamraj's punishment. Then he says, I'm also not scared of scorching sun. Yeah. You know, when in summers the temperature gets very heavy, very hot. Yeah. You feel so hot. You come inside the house, you turn on the air condition. But people who don't have the air condition, what about them? So you understand? So you are already fortunate that Lord has made this arrangement for us. We have an air condition. There are people in other part of the world, there are young children in Africa, in other countries, they don't even get a food 3 times. So we are so fortunate. Yeah. So here, King is saying, I'm not afraid of scorching sun. Then he says, I'm not afraid of moon also. So moon, the cold or the coolness comes from the moon. And then he says, I'm also not afraid of the strong winds. You know, when the weather is very windy, what happens? The trees get uprooted. The vehicles get turned over. They flip in the air. Yeah, strong winds. They can create so much havoc and damage. So he says, I'm not afraid of winds also. And then he says, I'm also not afraid of Kuber. Kuber, who is Kuber? He's the treasurer. You know, the money that you get. Money. So Kuber is the controller of the money. All the opulence that you get, it comes from Kuber. So like this, there are all these position holders. They are appointed by the Supreme Lord to control various things. Yeah. So he says, I'm not afraid of any of them as much as I'm afraid of offending a Brahman or offending a saintly person. You understand now? Saintly person we should not offend. When we see saintly person, we pay our obeisances. We offer our respect to them. Now, why he's saying this, we will know more. So we'll have a story today. And then in that, you will understand why did King is saying that I'm not afraid of all of these, but I'm really afraid of offending the Brahmanas because he has offended a Brahman now. And he's asking for forgiveness. Yeah. So we'll hear that story. That will answer why is he making this plea. Yeah. So you understood the verse now? Everybody understood the verse? Maybe one Prabhuji recite the verse. It's nice to recite. Anyone who wants to try? Nitish Prabhu, you try. नाहं विशङ्के सूर्यराज्य वज्रान् नाहं विशङ्के सुरराजवज्रा नाद्रक्ष्यशूलान् नायं सदन्ता नाद्रक्षशूलान् नयमस्य दण्डा नग्न अर्क सोमल्य वितापस्त्र नाग्नर्क सोमा निलवेतपास्त्रा शङ्के वृषं ब्रह्म कलवामन शङ्के वृषं ब्रह्मकुलावमानात्. Okay, one Mataji. It's okay. It's very auspicious. There is no. Please try. Yes, Mataji, please try.
नाहं विशंके सुरराज वज्रा न त्रयक्ष शूलान्नयमस्य दण्डा नाग्नर्क सोमा निलवेत पास्त्रा शंके भृशं ब्रह्मकुला वमाना. Okay, very nice. Now we're going to read the purport. Purport by Srila Prabhupada ki. Okay, please hear attentively. When Sri Chaitanya Mahaprabhu was instructing Rupa Goswami at the Das Ashwamedh Ghat in Prayag, he pointed out very clearly the seriousness of offending a Vaishnava. Who is a Vaishnava? Whoever worships Vishnu, he is a Vaishnava. Yeah, children, you understand? Yes, Lagan? Whoever worships Vaishnava, Vishnu Bhagwan, he is a Vaishnava. So you are all Vaishnava because you have all come here assembled to worship Lord Vishnu. So everybody, whoever is worshipping Vishnu, is a Vaishnava. So he pointed out very clearly the seriousness of offending a Vaishnava. He compared the Vaishnava Aprad to Hathi Mata, a mad elephant. When a mad elephant enters a garden, it spoils all the fruits and flowers. Similarly, if one offends a Vaishnava, he spoils all his spiritual assets. Offending a Brahmana is very dangerous, and this was known to be Maharaj Rahugana. He therefore frankly admitted his fault. There are many dangerous things: thunderbolts, fire, Yamraj's punishment, the punishment of Lord Shiva's trident, and so forth. But none is considered as serious as offending a Brahman like Jad Bharat. Therefore, Maharaj Rahugana immediately descended from his palanquin and fell flat before the lotus feet of Brahmana Jad Bharat just to be excused. Srila Bhaktivedanta purports ki. Okay, let's do Manglacharan. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshur Unmilitam Yena Tasmai Shri Guruve Nama Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupah Kadamayyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padkamlam Shri Gurum Vaishnavamsha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunathan Tam Sajivam Savadhetam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamsha He Krishna Karuna Sindhu Deenabandhu Jagatpate Gopesh Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namastute Tapta Kanchana Gaurangi Shri Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarobhyascha Kripa Sindhu Bhaevacha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Nama Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhuter Mahadbhir Yaima Puro Vibho Nirmayashete Yadamusha Purusha
भुङ्क्ते गुणांशो दशषोडशात्मकं सोऽलङ्कसृष्ट भगवान् वचांसि मे श्रीकृष्ण शरणं शरणागतं कथा अमृतं सतत पिबतं भक्ति वेदांत मार्गपन्तनं सर्वलोक ऋषिदेव जन्म प्रसन्नम सर्वलोक ऋषिदेव जन्म प्रसन्नम. Hare Krishna, Prabhuji and Mataji, may the Supreme Lord please decorate my tongue. May the true words, may the right words are spoken at the right time. May we are all able to glorify the Supreme Personality of Godhead, Sarv Srila Prabhupada, Srila Guru Maharaj, and all the living entities. Hare Krishna. So I just thought maybe we'll cover a little topic for children and then they can go and then we can discuss. Otherwise, it will be a very long session for them. So today I want to teach you a new thing. So you remember last time we have learned two things. Who remember all those two things? The first one was how we see Krishna. Navya, you know how we see Krishna? Who knows? How we see Krishna? What is the process to see Krishna? Yes. So the process to see Krishna is like first like hearing about Krishna, Yes. like in like scriptures and that, and then like second is like getting attracted to Krishna. Yes. So like basically doing kirtans for Krishna and offering prasadam, and then third is like thinking about Krishna. Like whenever you're chanting, you think about Krishna, like basically almost like all the time. And then fourth, you see Krishna, like you finally see him. Then you see him, yeah. Yes. Yes, Arna. So we hear about him. Then we get attracted to him. Then we think about him. And then we get to see him. Very simple. Yes, Kabir, you agree? Yeah. Arjun, you agree? So you agree with it? And what was the other thing that we learned? Yamraj stringent rope. Yes. 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 Does anyone remember? Yes. Krishna, then we hear about So 5 senses, right? We have 5 senses. They are called knowledge acquiring senses. So we engage those senses because the first step you able to see Krishna, right? But you hear about Krishna. So in that process, you have to engage your senses. So we know the function of the senses, right? The function of 5 senses. Okay, tell me 5 senses. Kabir, what are the 5 senses? You see. Eyes for looking, yes. Nose for smelling. Tongue for tasting, 3. Ears for, and skin for touching. So these are the 5 senses. Yes, we all have these 5 senses. Yes. Now we engage these 5 senses. How do we engage these 5 senses in Krishna service? Yes, Arjun, how do we engage? From eyes, what do you see? Jagannath? Yes. So you see Krishna with your eyes. Yes. Then you see Krishna. Yes. Then tongue is for tasting and singing. Yes. Nose for throwing the parent offer to Krishna, and skin is for touching Krishna's feet and hands. Krishna's feet. Very nice. Very nice. Yeah. So this is how we engage. So you all have a service. So today when we do Aarti, after Aarti, you all should take up one service. Okay. One will take the jot, one will take the lamp, offer the lamps, right? One will take the flowers we smell. You do the flowers. One will do the water. You want to do the water today? You do the water.
You do the flowers. Who wants to do the lamp today? Arjun will do the lamp today. Done. Your sister will help you because it might be a bit heavy for you. But yeah, so you do the lamp today. Okay. So these are the 3 services we do. Okay. So these are the 2 things we learned. So today I will quickly teach you one more thing and then we'll revise it next time. So it is said that there are 8.4 million species of life. You have heard that? You have heard that? 8.4. Okay, now remember that. There are 8.4 million species of life. You go to zoo, how many animals you see? You see lion, tiger, you see birds, right? So they're all different species. But like this, there are 8.4 million species of life. But they are categorized in 6 categories for simplification. I want you to understand and remember these 6 categorization. So the first is the species which live in the water or which are born in the water. Which are born in the, so one is which are born in the water. One type, right? Then from the water, so water is considered to be the lowest. Then outside the water, what is there? Earth, plants, yes, land, yes. So the on the land, let them be comfortable. Yes, on the land we have trees. So the first species is, right? So for elders, so out of 84 lakhs, 9 lakhs is jo pani wale, Jalaja Navalakshani. So 9 lakhs are in the water. That's why Srila Prabhupada says now they're spending so much money going into the ocean, doing all this research. He's saying our scripture has already mentioned that there are 9 lakh species of life. What is the point in going inside the water? And what they are doing is they're simply validating, okay, we found 2 species, we found 10 species, this species is going to be extinct now, this and that, all of that, right? So all of that is considered to be waste of time because what purpose does it serve? Okay, so back to our point. So the first one is the species which are born and live in the water. One. Second category is the plants and trees which have root. Plant also live. Right? You agree? Plant also live. So we don't remember back in India, our parents used to tell us in the night, the trees are sleeping. We should not cut them. We should not touch them. We should not pick them. Yes? Yeah. So trees, they also have life. Remember this. And in the night, what does tree do? They emit oxygen or they emit carbon dioxide during the night. What do they do? It's one. In the night, what do they do? And then without oxygen. When do they breathe out oxygen? Daytime, they breathe out oxygen, and in the night time, they breathe out carbon dioxide. So in the night, we avoid going near the trees. Yeah. So trees are the second category, right? And trees are 20 lakh. 20 lakh पेड़ है, 9 लाख जो है पानी में रहने वाले हैं, right? Then the third category is, so water creatures, they live in the water. On the land, the trees, they have the roots, they stay on the land, they don't move, they are immovables. Then the third category is the krimis, which are like serpents, the insects who crawl. So the way to remember this is who crawl, right? Cockroaches, yes, insects, all the insects. There are 12 lakhs, 12 lakh. So 9 lakh water, 20 lakh trees, and 12 lakh krimis, reptiles who crawl, right? So kitne ho gaye? 3. These are 3. Then the fourth one is, the next category is the birds who fly, right? The birds who fly. They are 10 lakh, 10 lakh. 10 lakh, 10 lakh. 10 lakh is 100,000. 100,000. So the birds is the fourth category. So what is the first category? 10 lakh is 1 million. 10 lakh is, oh yes, you're right, sorry. Oh, so yeah, yeah, that's right, Ruby. Good, Sandeep. Thank you. So what is the first category? Water. What is the second category?
Trees. Yes, Arjun. What is the third category? Insects, reptiles, who don't walk but who crawl. So that is the third category. The fourth category is the birds who fly. And then the next category is animals, the beasts, the four-legged ones. They are 30 lakh. The four-legged ones, like tigers, elephants, or what is he saying? He's saying spiders. Spiders are scrollers. Yeah. So you can categorize all these creatures into 6 categories. I think that's what I want you to remember. Every creature you can put into one category. So you remember there are 6 type of, all of us fit into one category, right? So what is the first one? In the water. And as you can see logically also, if you want to remember, the water level is always low, right? So they are at the lowest level. Then the next level is on the earth, which are trees. Then the next level is the animals, the who crawl, who crawls, right, on the earth. Then the next level is birds who fly. And then the next level is animals. What are you saying? Floating. Okay. Good. That's also good. Okay. So that is the 5th category, which is animals. Now what is left? Humans. Right? Humans are 4 lakhs. And you see, humans are different. Like, we are all, like, you see some people born in Asia, Chinese, they have different features. You see Africans, they have different features, different hairs, right? You see demigods, you see Gandharvs. So like this, there are 4 lakhs. 4 lakh kitna ho gaya? 400,000. 400,000, can you imagine? 400,000. So that's what constitutes all the created beings, right? All the living entities or the creatures, right? So once again, there are 6 types, and then you can go. I won't take any more of your time. What is the first one? Animals that are in the water. In the water. And then trees. Yes, they are on the land. Yeah. What is the third? Insects. Insects. They crawls. So you can memorize by their features, right? When you categorize them. They swim in the water. The trees, they have the roots, and then the crawlers, right? How many lakhs? Okay, numbers next time. What is the 4th one? Birds that fly. And what is the 5th one, Kabir? The animals, the 4-legged animals, the beasts. Yeah. And then the next is human beings. Yeah. So there are 6 categories. So will you remember this now? Right? Whoever you look at, you can just categorize. मुझे एक जगह मैंने सुना है कि जो 84 लाख योनि में प्रेत योनि भी आती है, वो किसके अंदर आती है? वो जो प्रेत योनि है वो they are part of the human creatures. उनको physical body नहीं है, but they are considered in the human. Yeah. Even demigods are also part of this. देवता भी 4 लाख में आते हैं. स्पीसीज आगे ह्यूमंस की ये उसमें आ गए. हाँ जी. Yes, good. Humans में प्रभु जी सीधा कोई सांप लगा लें, 2 टांगों पे चल. Wait. Yes. Yeah. So you okay now, children? You remember these 6 categories? Okay, please go. Thank you for your attention. Yeah. So let's इनको engage करना जरूरी है ना, क्योंकि यही फ्यूचर है, आगे इन्होंने करना है. तो हम लोग भरत महाराज की कहानी पे चलते हैं. तो पिछली बार भरत महाराज जी को हिरण का शरीर मिला था. हिरण का शरीर उनको क्यों मिला था? क्योंकि उनकी हिरण में आसक्ति हो गई थी. तो यही भरत महाराज के नाम से यही भरत महाराज के नाम से भारतवर्ष जिसको कहा जाता है, भारत भूमि, या क्योंकि भारत भूमि सिर्फ इंडिया ही नहीं है, पूरा जो ये 7 द्वीप है हमारे, उसमें पूरे में भरत महाराज का एक छत्र राज्य था.
तो इसलिए इसका नाम पहले वो था, भारत। इसलिए कई बार जगह के नाम, एक हमारे महाराज बता रहे थे, पर्थ जो नाम पड़ा है, पार्थ से पर्थ का नाम आ गया। ऑस्ट्रेलिया, वो महाराज बताते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आके अर्जुन ने अपने अस्त्र छिपाए थे, इसको अस्त्राल्य बोलते थे। फिर यहाँ का जो कुत्ता है, एक डिंगी है, क्या नाम है उसका, क्या है, डिंगो, उसका बोलते हैं, उसका कनेक्शन कुछ इंडिया से मिला है, पीछे एक रिसर्च हुई थी। तो ये सारा पूरा एक ही वो था, है ना? तो ये भरत महाराज यहाँ के राजा थे पूरे भारतवर्ष के। तो ये एबोरिजिनल की जो वोकैबुलरी है उसको भी वो तमिल में कुछ बोलते हैं हाँ, कि वहां से लिंक है। वहां से लिंक है, यस यस। इंडोनेशिया में देख लीजिए आप, वहां भगवान राम के मंदिर है, रामलीला होती है, से काफी मिलता है। काफी मिलता है, यस। पूछते हैं भी, बिल्कुल बिल्कुल, यस यस यस। तो बिल्कुल वही है, तो सब पहले वही था, लेकिन फिर धीरे धीरे बढ़ता गया, राज्य बन गया, अपने हिसाब से लोगों ने उसको डिवीजन कर दिया। तो यही भरत महाराज राजा थे, इनकी हिरण में आसक्ति हो जाती है, हिरण के एक बच्चे में, और फिर इन्होंने शरीर छोड़ा। शरीर छोड़ा तो कहते हैं जब ये हिरण बन गए दोबारा से, ही बिकेम ए डियर, बिकॉज जब इन्होंने शरीर छोड़ा ये हिरण के बारे में सोच रहे थे, सो ही गॉट द बॉडी ऑफ ए डियर, लेकिन हिरण की बॉडी में थे। उसके बाद इनको पिछले पूरे जन्म याद थे अपने, इनको याद था कि मैं हिरण क्यों बना हूं। इनको रियलाइज हो गया कि मैं सब राजपाट छोड़ के मैं वन में चला गया था, लेकिन वन में जाकर के भी मैं हिरण में आसक्त हो गया। हिरण के बच्चे को प्रिंस कहने लगे, जबकि इनका अपने प्रिंस थे, अपने इनके पुत्र थे, उनको छोड़ के आ गए थे। लेकिन यहाँ हिरण के बच्चे में इनका मन लग गया और ही गॉट सो डिटैच। तो फोकस उसमें यही था, जैसा पॉइंट ये हम लोग ने वो समझने की कोशिश ये थी कि इन्होंने सोचा कि हिरण मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, जबकि जंगल में और भी हिरण के बच्चे, उनको भी तो कोई देख रहा है। अब उसको इन्होंने खड़ा कर दिया था तो वो उसको छोड़ देते, बट ही गॉट सो अटैच, इतना उनकी हिरण में आसक्ति हो गई थी। अपनी पूजा कर रहे थे, पूजा करते करते बीच में उठ के देखते थे हिरण का बच्चा कहाँ है। हिरण का बच्चा दिखता था, उसको आशीर्वाद देते थे, तुम ठीक से रहो, फिर जाके बैठ के फिर पूजा करने लगते। ये इनकी हालत हो गई थी। तो इसी वजह से फिर एक दिन हिरण नहीं आया, तो ये हिरण का ध्यान करने लगे, और जब शरीर छोड़ने लगे तो कहते हैं तब तक हिरण आ गया था। हिरण भी इनके पास बैठा था, हिरण भी रो रहा था, ये भी रो रहे थे, और फिर हिरण भी मर जाता है, ये भी मर जाते हैं। इन्होंने भी शरीर छोड़ दिया, और इन्होंने शरीर छोड़ा तो फिर ये हिरण बन गए, और हिरण का इनको जन्म हुआ। जहां इन्होंने शरीर छोड़ा था उससे थोड़ी दूर पर एक हिरनी के बच्चे बन के ये पैदा हुए। तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि जहां जगह में समय की आसक्ति होती है, वहीं के आसपास हम लोग जन्म लेते हैं। किस योनि में लेंगे वो हमारे कर्मों पर डिपेंड करता है। कोई कुत्ता अगर नजदीक में ज्यादा उसका हमारे से प्रेम है, तो समझ लो पिछला कोई कनेक्शन रहा है, राइट। कोई एनिमल से हमारा कनेक्शन है, और हमारा आपस में भी, बाय द वे, हम लोगों का आपस में भी मिलना, कोई दिस इज, ये कोई वो नहीं है, संयोग नहीं है, ये सब प्री अरेंजमेंट है। आप रिवाइंड करके पीछे सोच के देखें, हम लोग किससे कैसे मिले हैं, कैसे हम लोगों का मिलना जुलना हुआ है। कुछ हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं जिसकी वजह से हम लोग मिल रहे हैं। हमने किसी का कुछ लेना देना रहता है तो वो हिसाब किताब हो रहा है अभी, दैट इज द होल पॉइंट, है ना। तो इस तरीके से वो हुए, और फिर भरत महाराज हिरण बने। तो उन्होंने हिरण की योनि में ही रियलाइज कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और अब मैं दोबारा किसी के साथ नहीं जुड़ूंगा। तो वो बाकी हिरणों से अलग रहते थे, किसी के हिरण के साथ नहीं रहते थे। वो जहां आश्रम का था उनका पुलह आश्रम, उसी आश्रम में दोबारा आ गए, हिरण में थे, हिरण के रूप में उसी आश्रम के पास आ गए, और वहीं आके रहने लगे, और आश्रम के आसपास घूमते रहते थे। आश्रम के आसपास घूमते रहते थे, सूखी घास खाते थे, ज्यादा हरी हरी घास भी नहीं खाते थे। ही वॉज टोटली डिटैच्ड। तो जो सेंटली क्वालिटीज थी वो उनकी पहले से चली आ रही थी, और इस तरीके से वहां पे रहे, और रोज गंडकी नदी में स्नान करते थे। गंडकी नदी में कौन है, भगवान शालिग्राम गंडकी नदी में भी मिलते हैं। तो गंडकी नदी में स्नान करते थे, और कहते हैं जब लास्ट टाइम उनका आया शरीर छोड़ने का समय, तो हाफ बॉडी उनकी गंडकी नदी में थी, हाफ बॉडी उनकी बाहर जमीन पे थी, नदी के किनारे। इस तरीके से उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो फिर अब आगे की शुरू करते हैं। तो बताते हैं कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि एक ब्राह्मण थे,
वो ब्राह्मण बहुत ही वेदों का उन्होंने अध्ययन किया हुआ था, और वेदों के साथ साथ उन्होंने उपनिषद का भी अध्ययन किया हुआ था। जैसे हमने वेद 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 में दो कैटेगरी होती है, एक बोलते हैं पूर्व मीमांसा, एक बोलते हैं उत्तर मीमांसा। जो पूर्व मीमांसा, जो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ वेद है, उसमें कर्म कांड के बारे में बताया गया है। कर्म कांड कैसे कैसे कर्मों को करना है, अभी मुझे क्या करना है, क्या करना चाहिए, क्या रिचुअल्स हैं, कैसे यज्ञ करना चाहिए, वो सारे उसमें बताए गए हैं। लेकिन जो नेक्स्ट पार्ट है उसको उत्तर मीमांसा कहते हैं। कहते हैं जब पहला सब कुछ कर लेते हैं तब रियलाइज हुआ कि मैं कौन हूँ। इट इज लाइक पहले आप सबने अपना घर बना लिया, आपकी सारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो गई है भगवान की कृपा से, आपने सारे यज्ञ किए, जो भी किए, सब कुछ अरेंजमेंट हो गया। नाउ यू स्टार्ट थिंकिंग अब क्या करना है। अब सब अपने से अंदाजा लगाएं, सब भारत से आए हैं, सबका सेटअप हो गया, अब सोचते हैं अब जीवन में क्या बचा है करने को। कई लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, है ना, कुछ को समझ में नहीं आता अब क्या करें, इतना पैसा मिल गया अब उसका क्या करें, सारी इच्छाएं तो पूरी हो गई, अब जीवन में कोई गोल ही नहीं बचा, है ना। फिर गोल नहीं बचा तो कुछ कुछ मेटेरियलिस्टिक गोल बनाते रहते हैं कि भाई अब चलो अब ये खरीद लेंगे, अब ये खरीद लेंगे, अब वो खरीद लेंगे, लेकिन शांति थोड़ा मिलती है। डू वी गेट पीस? मेंटल पीस तो फिर भी नहीं है। यहां तक हो जाता है घर में सब कुछ है लेकिन भूख ही नहीं लग रही है ना। सोने का बिस्तर मिल जाए, नींद को तरसे नैन, है और किसी को आए जमीन पे सोकर भी चैन। हम लोग के पास सब कुछ है लेकिन नींद नहीं आती है, रात को नींद की गोली खानी पड़ती है लोगों को। सो उसके लिए फिर उत्तर मीमांसा जो जो हमारे शास्त्र हैं उसमें बताया गया, उसमें उपनिषद जो है हमारे, ये सब आते हैं। और उसमें बहुत से ऋषियों ने, उन्होंने फिर इस जीवन के जो अ, जीवन चक्र को, संसार चक्र को उन्होंने निचोड़ निकाला। उपनिषदों में उन्होंने बताया कि जीवन क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म कौन है? जीव का ब्रह्म से क्या संबंध है, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, एक जीवात्मा का क्या धर्म है। आप समझ रहे हैं, दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ इंक्वायरी। मैं कौन हूं, हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, इस तरीके से। तो ये जो पंडित जो थे ब्राह्मण, इन्होंने इन सब का अध्ययन किया हुआ था। ही वॉज वेल वर्स्ड इन दी स्क्रिप्चर्स, नॉन एनवियस थे, अच्छे से दान करते थे, पूरा इनके अंदर ब्राह्मणिकल सारे क्वालिटीज थी। और इन ब्राह्मण जी की दो पत्नी थी। पहली पत्नी से इनको 9 पुत्र हुए पहली पत्नी से 9 बेटे हुए, और दूसरी पत्नी से इनको ट्विंस हुए, एक लड़की और एक लड़का। और जो लड़के थे वो कौन थे? भरत महाराज। तो भरत महाराज अब हिरण के बाद अब इस ब्राह्मण कुल में उनका जन्म होता है। अब फिर से एक चीज और, मैं आपको भगवत गीता में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया था कि जो लोग योग साधना के मार्ग पे चल रहे हैं और मान लो उनका ये मार्ग भ्रष्ट हो जाता है, अब जैसे भरत महाराज का पतन ही हो गया ना, डाउनफॉल ही बताया गया, क्योंकि वन में तपस्या करने गए थे, हिरण में आसक्ति हो गई तो हिरण ही बन गए, तो उनका डाउनफॉल हो गया। तो अर्जुन ने यही प्रश्न किया भगवान से कि अगर जिसका डाउनफॉल हो जाता है, इट इज लाइक ए क्लाउड। कई बार आप देखते हैं क्लाउडों की बहुत सारे बादल एक साथ हैं, कई जगह आप देखते हैं एक बादल अलग से आपको दिखेगा। तो अर्जुन ने उसको उससे पूछा कि कई बार जैसे बादल बाकी सब बादलों से अलग हो जाता है छिन्न भिन्न होके, तो ये जो योग के मार्ग पे चल रहा है या चलने की कोशिश कर रहा है, अगर वो गिर जाता है तो फिर उसकी क्या गति होती है। और उसका तो ये हुआ कि जब दोनों ही रास्तों से गिर गया, मटेरियलिस्टिक पाथ से भी गिर गया और साधना से भी गिर गया। अभी आप अपने से अंदाजा लगाएं, अभी आप अच्छे से काम कर रहे हैं, अच्छे से सब कुछ तनख्वाह उनका आ रही है, सब कुछ अच्छे से चल रहा है, फिर सडनली आप सोचते हैं कि मैं भक्ति के मार्ग में आ जाता हूँ। आप भक्ति के मार्ग में आते हो, यहाँ भक्ति ढंग से हो नहीं पाती है, फिर भी आप गिर पड़ के कोशिश कर रहे हो और फिर आपका फॉल डाउन हो जाता है, मतलब आपने जो वाव लिया वो पूरा नहीं कर पाते। लेकिन फिर आपकी सिचुएशन ये है, अब आप जो आपकी मटेरियल पोजीशन थी उस पर भी नहीं जा सकते, जो मटेरियल पोजीशन थी उस पर भी नहीं जा सकते, और भक्ति मार्ग में भी ठीक से नहीं चल रहा है। तो अब लगता है कि अब तो दोनों तरफ से गए। समझ रहे आप? तो भरत महाराज के साथ यही हुआ। अब जंगल में चले गए, हिरण के साथ मिल गए, है? अब उनकी जब हिरण में आसक्ति हो गई
अब अगर तब वो सोचते कि अब हिरण मर गया है या ये है, तब वो सोचें कि चलो दोबारा से राज्य ले लेता हूं जाकर के, अब दोबारा जाएंगे राज्य लेने? अरे नहीं नहीं, वो लोग क्या बोलेंगे, वहां भी गड़बड़ हो गई, यहां भी गड़बड़ हो गई, दोनों से गिर गए। तो उसका फिर ये अर्जुन का प्रश्न था कि भगवान, जो दोनों मार्गों से, ना वो इधर का रहा, ना कहते हैं ना धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, लेकिन भगवान ने अर्जुन को सतर्क किया। भगवान ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए अर्जुन को कहा कि नहीं अर्जुन, पार्थ नैव इह न अमुत्र, ना इस लाइफ में ना अगली लाइफ में, विनाशस्तस्य विद्यते, उसका विनाश नहीं होता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर किसी ने भक्ति मार्ग पे चलने की कोशिश की है तो उसका ना तो इस लाइफ में, आपको लगेगा, हमें लगेगा आउटसाइड से, अरे ये तो उसका सब बर्बाद हो गया, अच्छा भजन करने चला था, नहीं नहीं, उसका कुछ बर्बाद नहीं होता है, तो ये भगवान गारंटी दे रहा है। तो आप लोग निश्चिंत रहें इस बारे में। आप लोग यहाँ आ रहे हैं तो यू आर नॉट मिसिंग एनीथिंग। आप कृष्णा कॉन्शियस में चलने की कोशिश कर रहे हैं, आप कुछ मिस नहीं कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा नहीं अर्जुन, न यह नीदर इन दिस लाइफ न अमुत्र नॉर इन द नेक्स्ट लाइफ, विनाशस्तस्य विद्यते, उसका विनाश नहीं होता है। फिर क्या होता है? फिर भगवान कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, जो भी उन्होंने कल्याण के कार्य किए हैं, इवन जिसने चैरिटी भी की है, अगर किसी ने कोई चैरिटी भी की है तो उसको पुण्यकृता, जिसने जितने भी पुण्य किए हैं वो पुण्य लोकों में जाएगा और वहां पे उन भोगों को भोगेगा। उषित्वा शाश्वत समा, उषित्वा मतलब वो भोगेगा उन भोगों को जो उसने अच्छे कर्म किए हैं, और पुण्य लोकों में जाएगा और पूरे उतने साल तक, डिपेंडिंग ऑन दिस इज लाइक योर बैंक अकाउंट, जितना आपने पैसा जमा किया, सिमिलरली भगवान कह रहे हैं उसका कुछ नुकसान नहीं होगा, वो भोग भोगेगा। और भोग भोगने के बाद उसका क्या होगा? उसके भोग भोगने बाद भगवान कहते हैं श्रीमताम शुचि नाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। तो पहले तो प्रश्न ये था कि वो दोनों रास्तों से भटक गया तो कहां का रहेगा? भगवान ने कहा उसका कुछ नहीं हो सकता है, उसका विनाश नहीं होगा। नंबर वन, उसने जो सुकृत किए हैं वो उसका फल भोगेगा, पुण्य लोकों में जाएगा, और क्योंकि उसने अच्छे कार्य किए हैं, क्योंकि उसने इस योग मार्ग में, साधना के मार्ग में चलने की कोशिश की है, तो भगवान कहते हैं हे अर्जुन, उसको शुचि नाम श्रीमताम गेहे। शुचि नाम कौन है? जो ब्राह्मण है। और श्रीमताम कौन है? जो अच्छे, जिनके पास धन लक्ष्मी है, सात्विक जो लोग हैं, उन घरों में उसका जन्म होगा और वहां से वो अपनी यात्रा फिर से शुरू कर पाएगा। सो यू ऑल फॉल इनटू दिस कैटेगरी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने कुछ सुकृत की होगी, तभी आप लोग इस पोजीशन में हैं। अदरवाइज जैसे देखिए, बच्चों को भी पता है कि अफ्रीका में लोग भूखे मर रहे हैं, वो क्या भजन करेंगे? भूखे भजन ना होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला। ले लो भैया, भूखे में कहां भजन होगा, ले लो। है? लेकिन भगवान ने सब कुछ दिया है आपको, तो कुछ तो आपने सुकृत की है। राइट? तो ये भगवान ने आश्वासन। तो ऐसे ही भरत महाराज, उन्होंने जितना अच्छा भजन किया था, तो उनको एक उचित कुल के ब्राह्मण में, ब्राह्मण के घर में उनको जन्म हुआ, है ना। और कहते हैं ये जो था, ये उनका आखिरी जन्म था। चरम शरीरेण विप्रत्वम गतम आहु। वो कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, चरम शरीरेण, ये उनका आखिरी जन्म था, या उन्होंने आखिरी बार शरीर धारण किया था, पहले ही बता दिया। विप्रत्वम, एक बड़े ऊंचे कुल के ब्राह्मण के घर में, और आहु, ऐसा महात्मा लोग कहते हैं, उनकी ऐसी गति हुई। राइट? उन्होंने जब हिरण का शरीर छोड़ दिया, राइट, उत्सृष्टम मृग शरीरम, जब मृग का शरीर छोड़ दिया, मृग का शरीर छोड़ने के बाद ऐसा कहते हैं महात्मा लोग, हे परीक्षित महाराज, कि उनका एक विप्र के, एक ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, और ये उनका चरम शरीर था, आखिरी शरीर था। इसके बाद उनको शरीर, बॉडी एक्सेप्ट नहीं करनी पड़ी। देखिए, पहले से ही बता दिया गया। अब उनके बारे में बताते हैं कि भरत महाराज फिर शुरू से कैसे रहते थे।
वो कहते हैं अब की बार भरत महाराज ही वॉज वेरी अलर्ट। ब्राह्मण के घर में पैदा हुए थे, बट ही वॉज वेरी अलर्ट। He know everything for the last 2 births. उनको पिछले पूरे जन्म याद थे अपने। कहते हैं भगवत अनुग्रहेण, भगवान की कृपा से, भगवत अनुग्रहेण स्मृत, उनको स्मृति थी, उनको रिमेम्बरेंस थी। तो ये रिमेम्बरेंस भी भगवान से आती है, लेकिन रिमेम्बरेंस उनको क्यों थी? बिकॉज ही डिजायर्ड, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि मैं भगवान का भजन करूं, मैं इच्छा थी कि मैं भगवान की सेवा करूं, भगवान का ध्यान करूं। अगर आपकी इच्छा है तो भगवान आपको भी याद करा देंगे। अगर आपकी इच्छा ही नहीं है, राइट, कई बार कहते हैं हम प्रार्थना कुछ करते हैं और मन में चाहते कुछ और है। भगवान से भी वो चल रहा है डबल, राइट। प्रार्थना कुछ और कर रहे हैं लेकिन डिजायर कुछ और है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, राइट राइट। तो वो डुअलिटी हम लोग चल रही है। लेकिन क्योंकि भरत महाराज ही वॉज टोटली अलर्ट, तो कहते हैं भगवत अनुग्रहेण, भगवान की अनुग्रह, भगवान की कृपा से स्मृति, उनको रिमेम्बरेंस थी, पूर्व जन्मावली, जन्म नहीं पूर्व जन्मावली, जो जन्म की जितनी कड़ियां थी उनको अपनी लाइफ की सारी कड़ियां याद थी, और उनको सारी लाइफ की अपनी कड़ियां याद थी। इसी वजह से वो इस जन्म में क्या कर रहे थे, वो इस जन्म में पूरा डर के रहते थे। प्रतिघातम शंक मानो, उनको लगता था कि अब की बार मेरा ये चांस वेस्ट ना हो जाए, इस चीज से वो अलर्ट रहते थे हमेशा। शंक मतलब डर। आज का श्लोक हमने पढ़ा ना, वो क्या कह रहे हैं, ना हम विशंके, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ। लेकिन यहां पे वो कह रहे हैं प्रतिघातम शंक मानो, वो डरते थे, उनको डर लगता था कि अब मेरे से गलती ना हो जाए, अब मैं इस बार फेल ना हो जाऊं। और उसके लिए वो क्या करते थे, भगवान भगवत कर्म विध्वंस, जो भगवान सारे कर्मों को विध्वंस कर देते हैं, विध्वंस मतलब पूरी एक तरीके से उनको तहस नहस कर देते हैं, उन भगवान का क्या करते थे, श्रवण स्मरण, सुनते थे, उनको याद करते थे। अभी बच्चों ने बताया श्रवण स्मरण, राइट, गुण विवरण, और फिर बोलते भी उन्हीं के बारे में थे, उनके गुणों का विवरण करते थे। श्रवण स्मरण गुण विवरण, राइट, चरणारविंद युगालम मनसा, अपने मन से उन भगवान के चरण जो अरविंद हैं, उनके जो लोटस फीट हैं, उनका मन से ध्यान करते थे। और उनका मन का ध्यान कैसे होता था, पहले सुनते थे, फिर उनको स्मरण करते थे, और फिर उनके गुणों की चर्चा करते थे। एंड ही वॉज ऑलवेज अलर्ट, है ना। जब तक हम सुनेंगे नहीं, बच्चों ने बताया अभी आपको, जब तक सुनेंगे नहीं तो फिर हम याद क्या करेंगे, स्मरण क्या करोगे जब सुना ही नहीं। किसी चीज को सुनोगे आप तभी तो उसको स्मरण करोगे, और जब उसको स्मरण करोगे फिर उनका विवरण भी करोगे, फिर उसको बोलोगे भी, जो आपको याद है वही बोलोगे फिर, है ना। इसीलिए कहते हैं पूरे जीवन भर अगर हमने ऊटपटांग कुछ बोला है तो अंत में भगवान का नाम कैसे आएगा मुंह से, वही आएगा जो अंदर है, कितनी कोशिश कर लो, राइट। तो इस तरीके से भरत महाराज अपना जीवन जी रहे थे, हमेशा अलर्ट रहते थे। अब क्योंकि ब्राह्मण कुल में पैदा हुए थे तो उनके फादर को उनसे बड़ा प्रेम था, पिताजी को, ब्राह्मण को विशेष प्रेम था। अब क्या था, भरत महाराज बचपन से ही वो अपने आप को पागल शो करते थे, वो ऐसा प्रिटेंड करते थे कि मैं मूर्ख हूं, मुझे पता ही नहीं है। आप उसको बोलोगे पूर्व इसकी तरफ है, ये सूरज है, वो कुछ और ही उसको समझ लेते थे। तो ही विल प्रिटेंड पागल है ताकि आप उसको खुद ही छोड़ दोगे, आप बोले अरे तो पागल है छोड़ो उसको, राइट। लेकिन ही वॉज वेरी अलर्ट, इंटरनली ही वॉज फुली कृष्णा कॉन्शियस। और फादर का क्योंकि प्रेम था तो पिता अपने पुत्र को सोचते थे कि कैसे मैं इसको कृष्णा कॉन्शियस बना दूं। कृष्णा कॉन्शियस नहीं, उनका पहले ध्यान था कि ब्राह्मणिकल, क्योंकि जो 9 बेटे थे दे वर एक्सपर्ट, वो जो रिचुअलिस्टिक जो सेरेमनी थी उसमें एक्सपर्ट थे वो। लेकिन यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बताते उसमें एक्सपर्ट थे, लेकिन जो परोधर्म उसको नहीं जानते थे। परोधर्म क्या है, भगवान कृष्ण का जो स्मरण करना है, ध्यान करना, वो नहीं जानते थे। रिचुअलिस्टिक में दे वर परफेक्ट। लेकिन भरत महाराज अपोजिट थे, ही वॉज वेरी परफेक्ट इन हिज कॉन्शियसनेस। उनको पता था मुझे बस कृष्ण के पास ही जाना है, मुझे किसी और से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल पागल की तरह, मूर्ख की तरह रहते थे।
लेकिन पिता को चिंता थी कि इसको कैसे भजन सिखाऊं, कैसे मैं इसका संस्कार कर दूं। पिता ने भी उनका ब्रह्मचर्य तक के जो संस्कार होते वो किए, और गृहस्थ आश्रम में उनका नहीं सोचा कि तो पागल है, इसकी शादी करेंगे तो ये कहीं दूसरे घर कोई खराब कर देगा। शादी भी नहीं की उसकी। पिता ने कई बार कोशिश की इनको यज्ञ सिखा दें, इनको मतलब यज्ञ बुक सिखा दें, वेद पढ़ना सिखा दें, इनको गायत्री सिखा दूं, लेकिन वो कुछ भी नहीं सीखते थे। ही वॉज ऑलवेज अलर्ट कि नहीं, ही वॉज इवन नॉट इवन मीटिंग, अपने जो स्वजन थे उनसे भी दूर रहते थे कि नहीं इनके चक्रों में फंस गया तो मैं फिर यहीं फंस जाऊंगा। वो कितना अलर्ट थे। एक बार सोचने की बात है, आपने जब देखा होगा माता उत्तरा जब भाग के जाती है भगवान कृष्ण के पास, और जब अश्वत्थामा ने उनके ऊपर वो चलाया था ब्रह्मास्त्र, क्योंकि गर्भ में कौन थे? परीक्षित महाराज। तो माता उत्तरा भाग के जाती है। इसको तो आप ध्यान से सुने, इसमें एक बहुत ही वेरी सटल इसमें सूत्र है कि इस बात में अगर आप समझेंगे तो माता उत्तरा कहती है कि न त्वद अन्यम अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्पर। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते। कहती हे भगवान बचाओ, मुझे बचाओ, आप ही महायोगी हो, आप ही देवताओं के देवता हो, इस जगत की उत्पत्ति आपसे ही हुई है, आप इस जगत के पति हो, लेकिन आपके अलावा मैं यहाँ किसी और को नहीं देख रही हूं। ना त्वद अन्यम, आपके अलावा यहाँ कोई और नहीं है जो मुझे अभय दे सकता है, हु कैन मेक मी फियरलेस यत्र मृत्यु परस्परम, क्योंकि यहाँ पे हर कोई एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहा है। अब पांडव भी थे वहां पे, पांडव भी समय खड़े देख रहे थे, अर्जुन थे, भीम थे, युधिष्ठिर थे, लेकिन वो किसी के पास नहीं गई, सीधे कृष्ण के पास भाग के गई। तो पॉइंट समझने वाला यह है कि यत्र मृत्यु परस्परम, हम सब लोग एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। अब इस बात को कैसे समझा जाए भाई? कैसे पति पत्नी या परिवार वाले कैसे एक दूसरे की मृत्यु का कारण बन सकते हैं? लेकिन हम लोग दुश्मन तो कहते हैं कि दुश्मन तो मृत्यु का कारण बन रहा है, लेकिन आप देखें टू मच अटैचमेंट ऑल्सो बिकम्स अ रीजन फॉर मृत्यु। मृत्यु का मतलब क्या है? शरीर छूटना नहीं है। मृत्यु का मतलब क्या है? पुनर्जन्म, मोक्ष नहीं मिलना। मृत्यु का मतलब क्या है? कि जन्म लेना, बर्थ, डेथ, ओल्ड एज, डिसीज, इस साइकिल में चलते रहना, दैट इज कॉल्ड डेथ। यमराज के पास जाएंगे, फिर से यहां भेजेंगे हमको, फिर यहां पे एक और जन्म लेना पड़ेगा। तो वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो ये रिश्ते हैं, दीज ऑल बिकम रीजन फॉर आवर रीबर्थ। आप समझ रहे हैं? सो दैट इज द सर्टल पॉइंट। भले ही आपको किसी से प्रेम है, कई बार तो लोग प्रेम में भी एक दूसरे के लिए सुसाइड कर लेते हैं, मृत्यु का कारण बन गए, राइट? मृत्यु का कारण पहले तो शरीर छूटा, जिसने सुसाइड किया, फिर क्योंकि उसकी याद में शरीर छोड़ा है, फिर दोबारा से जन्म लेना पड़ेगा, राइट? तो बन गए मृत्यु का कारण। अगर किसी की पुत्र में आसक्ति है बहुत ज्यादा, तो फिर वो भी मृत्यु का कारण बनेगा। मृत्यु का कारण ये नहीं है कि सिर्फ शरीर छोड़ना, आप इसको उससे ना लिंक करें। मृत्यु मतलब दोबारा से जो जन्म लेना है। तो भले ही किसी से प्रेम है, भले ही किसी से द्वेष है, तो वो मृत्यु का कारण बन जाता है। तो ये इसमें सूत्र है। इसलिए माता उत्तरा भगवान कृष्ण के पास गई भाग करके, क्योंकि वही सारे बंधन काट सकते हैं। कर्म बंध विध्वंस, वही जड़ भरत, भरत महाराज ने यही दिमाग में रखा कि जो भगवान कर्म बंधन को विध्वंस कर देते हैं, उन्हीं भगवान का ध्यान करते थे, वो उन्हीं का श्रवण करते थे, उन्हीं का स्मरण करते थे, उन्हीं के गुणों का विवरण करते थे, और उनके जो चरण अरविंद हैं, जो उनके 2 लोटस फीट हैं, उन्हीं में अपने मन को लगा के रखते। समझ गया? तो टू मच अटैचमेंट इज ऑल्सो रीजन फॉर रीबर्थ, एंड टू मच किसी से द्वेष जो है वो भी अटैचमेंट फॉर रीबर्थ, क्योंकि किसी से द्वेष है तो उसी का चिंतन आप कर रहे हो, और उसी का चिंतन कर रहे हो, शरीर छोड़ोगे। अगर जो कर्म ग्रंथि है, जो आपके हृदय ग्रंथि है, उसमें जिसके आपकी एंट्री है, फिर आपको सबके लिए आना पड़ेगा, राइट? तो इस तरीके से साइंस है, कोई इसमें वो नहीं है, दिस इज नॉट फिक्शियस, ये भगवान का विधि का विधान है। तो इस तरीके से भरत महाराज पूरे अलर्ट रहते थे कि अपने स्वजनों से भी दूर रहते थे, और दुश्मनी का तो कोई मतलब ही नहीं कि स्वजनों से भी दूर रहना। अब पिता बहुत कोशिश करते थे, और पिता इसी चक्कर में थे कि इसको मैं सिखा दूं कर्म कांड, इसको वेदों का अध्ययन सिखा दूं, बाकी भाइयों को तो गुजारा हो जाएगा, इसका कैसे होगा? लेकिन उसको भी परीक्षित सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, वो उनका असद अनुग्रह था। वो जो उनका एफर्ट था वो असत था, वो सत नहीं था।
असत, सत और असत मतलब, सत मतलब सात्विक है, एक जेन्युइन है, लेकिन असत मतलब वो जेन्युइन नहीं है। जेन्युइन क्यों नहीं है, अब उसका कारण बताते हैं। जब वो ऐसे सोच रहे थे, जब उनके पिता भरत महाराज के पिता ऐसा सोच रहे थे कि इसको मैं बना दूं, तो कहते हैं उनका स्वयं स्वयं एवं गृह प्रमत्ते, क्योंकि वो पुत्र को पढ़ाने के चक्कर में रहते थे, तो उनका अपना भजन छूट गया। स्वयं एवं ग्रह प्रमत्ते, वो खुद भी ग्रह के काम काजों में फिर फंस गए, उनका मन उसमें लगा रहा। लेकिन लेकिन कहते हैं कालेन अप्रमत्तेन उपसंहृत, ही बिकेम अनअटेंटिव। लेकिन जो काल है, जो टाइम है, वो अप्रमत्त है, वो इनअटेंटिव नहीं है। जो इनअटेंटिव टाइम है, जो काल है, वो काल उनका भी आ गया और उनको भी मृत्यु प्राप्त हो गई। आप समझ रहे हैं? आप हम सब लोग अब सोच रहे हैं किसी तरीके से बच्चों को इनको एस्टेब्लिश कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, लेकिन काल हमारे पीछे भी दौड़ रहा है। तो ये पॉइंट जो भरत महाराज के पिता थे उन्होंने मिस कर दिया, तो वो पॉइंट वो यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हैं। काले न अप्रमत्ते न, जो काल है वो इनअटेंटिव नहीं है, इवन दो ही बिकेम इनअटेंटिव। स्वयं एवं गृह प्रमत्ते, वो खुद तो घर के कामकाज में एकदम अटेंटिव हो गए। हम लोग घर में लगे रहते हैं, आज ये करना है, आज ये करना है, आज वो करना है, ये करना है, इस बच्चे को ऐसा करना है, लेकिन अपना काल मालूम नहीं कितना समय बचा है। आवर टाइम, जो भगवान का जो काल है, जो काल शक्ति है, वो इनअटेंटिव नहीं है, वो पूरी तरह से अलर्ट है। वो समय सीमा निश्चित है, वो सभी समय पर आएगा और हमको भी ले जाएगा। इसलिए कहते हैं पल पल बीता जाए मुख से जप ले हरि का नाम। तो हमारा काल भी हमारा वेट कर रहा है। So the best education for the children or the next generation is we tell them about Krishna, right? Because then he takes care of everything. समझ रहे हो? उनको स्कूल भेजिए, उनको पढ़ाई करिए, सब कुछ कीजिए, बट एट द सेम टाइम बी अलर्ट। हम लोग अगर इनअटेंटिव हो गए, हमारा भी काल हमारे पीछे है। अब किसको पता है वो ब्राह्मण कहाँ गए, उनका अगला जन्म कहाँ हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ही कहते हैं वो आ गए, और उसके बाद जब ब्राह्मण की मृत्यु हो गई, तो उनकी जो छोटी पत्नी थी, उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? उन्होंने वो जो अग्नि थी, अग्नि में सती हो गई वो, और वो सीधा पति लोक को चली गई। दिस इज ऑल्सो साइन ऑफ टू मच अटैचमेंट। रिमेंबर, हमने जो पुरंजन की कथा सुनी थी, उसमें जो पत्नी थी वो अग्नि में प्रवेश करने की तैयारी कर रही थी, तभी भगवान ने आके उसको बताया कि नहीं, ये तो तुम इस जन्म में इसकी पत्नी हो, पिछले जन्म में तुम इसके पति थे और वो तुम्हारी पत्नी थी। तो दैट इज ऑल्सो टू मच अटैचमेंट। एंड देन वो कंफर्म करते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वो पति लोकम अगात, शी वेंट टू पति लोक में ही चली गई। अब जहां वो ब्राह्मण गए थे, तो उसकी पीछे पीछे वो भी चली गई। जो कहते हैं हम लोग 7 जन्म का साथ है, सब कुछ नहीं है बस मिलके भगवान का भजन करना है एक दूसरे के साथ, अदरवाइज वी जस्ट बिकम द रीजन फॉर रीबर्थ फॉर ईच अदर। तो इस तरीके से कहते हैं भरत महाराज के पिता चले गए और पत्नी ने भी वो ले लिया। अब उनके जो स्टेप ब्रदर्स थे, जो उनके सौतेले भाई थे, उन्होंने उनको मिसट्रीट करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा ये पागल है, इसको पढ़ना लिखना तो है नहीं, इसको क्या करेंगे, इसको खेत में काम कराते हैं। वो उसको खेत में भेजने लगे काम करने के लिए। अब खेत में भेजते थे काम करने के लिए, उसको बोला कि ठीक है तुमको यहाँ पे मिट्टी भर देनी है, जहां बोलते थे मिट्टी भर देनी है वहां वो गड्ढा खोद देते थे जहां बोलते थे पानी देना था, वो पानी जहां नहीं देना था उस खेत में पानी दे देते थे, जहां नहीं देना था उसको छोड़ देते थे। उनको लगा तो पागल हो गया है। वो उसको इतना मिसट्रीट करते थे, उसको खाने के लिए क्या देते थे, उसको बचा कुछ कुछ खाना दे देते थे। कीड़ों ने जो खाए हुए भोजन होता था, वो भोजन उनको देते थे, ये खा लो। जो खुरचन होती है, वो खुरचन उनको दे देते कि तुम ये खुरचन खा लो। लेकिन कहते भरत महाराज ही वॉज अलर्ट, वो उसको भी नेक्टर समझ के खा लेते थे। सी, ये लक्षण है उनका चरम शरीरेण। अगर आपको लगता है ये आपका आखिरी जन्म है या इसको आखिरी जन्म बनाना है, तो आप भरत महाराज का, द चैप्टर इज टाइटल द सुप्रीम कैरेक्टर ऑफ जड़ भरत। भरत महाराज ये उनका सुप्रीम कैरेक्टर है। हम लोग को थोड़ा सा नमक कम मिल जाए या थोड़ा सा गर्म ना हो
या रोटी ठंडी मिल जाए, अच्छा इसको मेरे सिर पे मार दो रोटी नहीं खिलानी तो किस किस तरह के हम लोग, कितनी इच्छाएं हैं, कितने तुच्छ, ये जो तुच्छ भोगों की इच्छाएं हैं प्रभु जी माता जी, अगर इसको चरम शरीर बनाना है तो वी ऑल कैन इंट्रोस्पेक्ट। भरत महाराज अपने आचरण से सिखा रहे हैं कि पुनर्जन्म नहीं लेना है उनको। ही वॉज सो मच मिसट्रीटेड, उनके अपने भाई, वो कहते हैं उनको लोग जबरदस्ती पकड़ के उनसे काम करा लेते थे, वो कर देते थे खुश होके, कोई बात नहीं। कोई भी उनको लेबर की तरह पकड़ के ले जाता था, ही वुड डू ओनली, ही विल वर्क ओनली फॉर फूड। कुछ खाना उनको दे दो, किसी ने दिया तो ठीक है, नहीं दिया तो भी ठीक है, बट इन द हार्ट ही वॉज ऑलवेज अलर्ट। इस तरीके से उनके ब्रदर्स उनको ट्रीट करते थे। अब क्या हुआ, एक बार वो उनको रात को खेत की रखवाली के लिए भेज दिया कि जाओ खेतों की रखवाली करो। अब वो खेतों की रखवाली कर रहे थे, तभी क्या हुआ, एक ट्राइबल ग्रुप था और उनके जो लीडर थे उनको एक पुत्र की इच्छा थी। तो उन्होंने भी पुत्र की इच्छा थी, तो उन्होंने अपने ही विचार से, अपने ही मन से कुछ उन्होंने, मत इज इट ओके, टाइम इज ओके, यू आर नॉट इन अ रश, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं सब लोग? ठीक है। तो जो उनके जो ट्राइबल ग्रुप थे उनके लीडर को पुत्र की इच्छा थी, और ऐसे ही उन्होंने कुछ कॉन्कॉक्टेड रिलीजन अपना बना लिया था। और किसी ने उनको कहा कि तुम अगर एक पुरुष की बलि दे देते हो तो तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो उसको कहते हैं पशु पुरुष, एक डल ह्यूमन बीइंग, उसकी आप बलि दे दोगे तो माता काली बहुत खुश हो जाएगी और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। तो वो इस तरीके की प्लानिंग कर रहे थे, वो जो डाकुओं का सरदार था। अब वो एक पागल से एक हट्टे कट्टे को पकड़ भी लाए थे। अब पकड़ लाए उसको और उसको बांध के रखा था। वो रात को रस्सी उस्सी खोल के भाग गया। अब भाग गया, बलि का टाइम आ गया। बलि का टाइम आ गया तो उसने, डाकू के सरदार ने उनको डांटा, तुम लोग क्या कर रहे हो, जाओ और जाके किसी रिप्लेसमेंट को खोज के लाओ। अब वो ढूंढते ढूंढते गए तो उनको जड़ भरत जी दिख गए। देखिए इनका नाम भी जड़ भरत है, किसी को नहीं पता इनका असली नाम क्या है। जड़ भरत नहीं होगा इनका नाम। सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं परीक्षित महाराज को, सबको पता है भरत महाराज है, लेकिन अब की बार वो जड़ की तरह बिहेव कर रहे हैं, जड़वत, तो उनका नाम जड़ भरत रख दिया गया। अदरवाइज ब्राह्मण ने तो कुछ नाम तो रखा होगा ना इनका, लेकिन जड़ भरत कह के समझाया जा रहा है हम लोग को समझाने के लिए कि इवन दो ही वाज सो इंटेलिजेंट, लेकिन वो जड़ की तरह एक व्यवहार करते थे। जड़ ये है, जैसे हमने बताया ना, जो पेड़ होते हैं वो जड़ है, उसमें कुछ वो नहीं है, कुछ इंटेलिजेंस नहीं है, एक ही जगह गड़ा हुआ है पेड़ वृक्ष है, उसका कुछ है नहीं, कुछ होना नहीं है, मूवमेंट नहीं होनी है, राइट। कोई भी आके उसको काट देगा, ये कर देगा। तो उसी तरीके से एक जड़ की तरह वो व्यवहार करते थे, बिल्कुल डल मूर्ख की तरह। तो उन्होंने कहा कि ये अच्छा कट्टा लग रहा है, इसके हाथ पैर अच्छे मोटे ताजे इसके हाथ हैं, अच्छा हुष्ट पुष्ट लग रहा है। और जबकि उनको कुछ खाने को ऐसा नहीं मिलता था, बट स्टिल ही वॉज, बिकॉज ही वॉज हैप्पी फ्रॉम इनसाइड, क्योंकि वो खुश थे, उनको कुछ भी मिल जाए खाने को, उसी में उनका शरीर चल रहा था। तो एक और चीज है, हम लोग भले ही कितना कितना ही पकवान खा ले, लेकिन जब तक मन खुश नहीं तब तक वो शरीर को लगेगा ही नहीं। और मन खुश का एक ही कारण है, भगवान का भजन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो इस तरीके से उनको जड़ भरत जी मिले और जड़ भरत जी को रस्सी से बांध के ले गए। अब लेके जाके उन्होंने जड़ भरत जी को अच्छे से उनको पहले स्नान कराया है? वो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्वविधि ना, अपनी उन्होंने कोई विधि बना ली थी, है? पशु पुरुष समझ के उनको ले गए, उनको अच्छे से स्नान कराया, है? उनको चंदन वंदन लगाया। अब इसकी बलि देनी है तो उनको अच्छे से ऑयल वॉयल लगा के उनको तैयार किया, है? अच्छे से उनको तैयार करके, और जड़ भरत जी को कोई भी उनको वो नहीं था मन में, उनको 1% भी वो नहीं था कि मेरी बलि होने जा रही है। ही वॉज इक्विपॉइज्ड, मारी बे राखी बे ये इच्छा तो हार। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं आप मुझे मारिए चाहे मुझे रखिए, ये इच्छा तो हार, आपका जो इच्छा है भगवान उसी तरह से कीजिए, क्योंकि मैं आपका नित्य भक्त हूं, मैं आपका नित्य भक्त हूं। और तुया अधिकार, नित्य भक्त प्रति तुया अधिकार, मैं आपके ऊपर मेरा पूरा अधिकार है, आप जैसे मुझको करना चाहे वैसे कीजिए। Right? हम क्या बताएं तुमको, सब कुछ तुम्हें खबर है, हर हाल में हमारी तेरी तरफ नजर है।
तो उस मूड से जड़ भरत जी को कोई कोई परेशानी नहीं थी। ही वॉज प्रिपेयर्ड। अब जड़ भरत जी को उन्होंने तैयार किया, सब कुछ किया और उनको ले गए बलि के लिए। जैसे उनको माता भद्रकाली के सामने लेके गए और उनकी गर्दन रखी उन्होंने, तो जो उनका प्रीस्ट था, हेड प्रीस्ट ने तलवार उठाई, तलवार को अभिमंत्रित किया, कुछ मंत्र चैंट किए, तलवार उठाई और जैसे ही वो उनका सिर काटने के लिए तैयार हुआ, कहते एकदम से जो माता भद्रकाली की मूर्ति थी उसमें कंपन हुआ, मूर्ति टूट गई और मूर्ति में से भद्रकाली स्वयं प्रकट हुई। माता काली उसमें से स्वयं प्रकट होगी, उनके साथ उनके जो गण थे, जो उनके सेवक थे, वो सब भी आ गए। और माता काली इतना गुस्से में थी, कहते उनको देख करके ऐसा लगा जैसे पूरा सृष्टि, पूरे विश्व को ही वो तहस नहस कर देंगी। उनके बड़े बड़े दांत थे, उनको है, उनकी आंखें एकदम लाल लाल थी, बड़े बड़े दांत थे, आंखें लाल लाल थी और उनका चेहरा इतना भयानक था, उसको देख के वो सब डर गए डाकू। और कहते हैं माता भद्रकाली ने वही तलवार ली और उस तलवार से जितने डाकू थे सबका सिर काट दिया, सबका सिर काट दिया। और जो उनके गण थे वो फुटबॉल बना के उनके सिरों से खेलने लगे। तो इसको कहते हैं पूर्ण सरेंडर, टोटल सरेंडर। तो ये है अंतिम चरम शरीर के लक्षण। ये चरम शरीर के लक्षण है। किसी ने कुछ बोल दिया, उनके ऊपर लोग थूक देते थे, खाने को नहीं देते थे, कैसे कैसे उनका ट्रीटमेंट होता था। राइट। तो थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करने का विषय है, थोड़ा अपने अंदर झांकने का विषय है, थोड़ा एक दूसरे को बताने का विषय है, क्योंकि हम सब आइसोलेशन में, मेटेरियल मोड्स में हम लोग सब आ जाते हैं, हम सबसे गलतियां होती हैं। लेकिन ये संगत का पर्पज ये है कि हम एक दूसरे को एनलाइटन करें, एक दूसरे को हेल्प करें, है ना, कि नहीं नहीं भजन करें, एक दूसरे को मिले। इसलिए हम लोग एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, कैसे करते हैं, हरे कृष्णा, जबकि हम लोग ध्यान ही नहीं देते, मुंह से हरे कृष्णा बोल रहे हैं, बस हरे कृष्णा बोल दिया, पता भी नहीं हरे कृष्णा बोला है। राइट, डू वी रियलाइज? क्या हमें आभास है हमने अभी हरे कृष्णा बोला, हमने अभी कृष्ण भगवान का नाम लिया? आभास नहीं है हमें। राइट, इनअटेंटिवली हम लोग बोल रहे हैं बस। राइट, इनअटेंटिवली। लेकिन जब उसके प्रति पूर्ण हमारा सरेंडर होगा, पूर्ण हमारे अंदर रिपेंटेंस होगी, प्रभुपाद कहते हैं बिकॉज ही वाज सो रिपेंटिंग, दैट इज हाउ ही कुड रिमेंबर हिज लास्ट बर्थ, दैट इज हाउ ही कुड बिहेव इन दिस वे, क्योंकि रिपेंटेंस थी। वही अनबॉर्न चाइल्ड यही कह रहा है, जो गर्भ में बच्चा है वो यही कह रहा है भगवान की जब पूजा कर रहा है, अतप्यमान हृदय वसितुम नमामि। हे मेरे भगवान, जो ट्रूली रिपेंट करते हैं, अतप्यमान, जिनको पूरा एक अपने आप को वो कर देते हैं कि मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, अपने आप को निकृष्ट से निकृष्ट समझते हैं, जिनको रियलाइज होता है, जो ऐसा भाव रखते हैं, भगवान आप उन्हीं के हृदय में वास करते हो या उन्हीं के हृदय में आप मैनिफेस्ट होते हो, उन भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ये जो अनबॉर्न चाइल्ड है अपने माँ के गर्भ में, वो प्रेयर्स बोल रहा है, वो तब कह रहा है भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हम सबके हृदय में है भगवान, लेकिन मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। तो इसीलिए हरे कृष्णा बोल रहे हैं, अपने आप को अलर्ट रखो। हरे मतलब श्रीमती राधा रानी, कृष्णा मतलब भगवान कृष्ण, श्री श्री राधा कृष्ण का मैं नाम ले रहा हूँ। और आप देखें जब हम मन में याद करके बोलेंगे तो उसका इफेक्ट भी कुछ और होगा, सामने वाले पे इफेक्ट कुछ और होगा। नहीं तो हरे कृष्णा और प्रभु कैसे हो, कैसा चल रहा है, हरे कृष्णा तो बहुत पीछे रह गया, अब कैसा चल रहा पे बात आ गई है, अब गॉसिप पे बात आ गई है। हरे कृष्णा तो बस एक एक वो फॉर्मेलिटी बन के रह गई है। तो ये वेरी सटल चीजें, बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। तो इसी तरीके से भरत महाराज, बिल्कुल उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। देखो भद्रकाली ने आके उनकी रक्षा करी। यहाँ पे फिर वही कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को, जो काल है वो अप्रमत्त है, इनअटेंटिव टाइम, because he was totally surrendered to the Padamulam, to the lotus feet of the Supreme Personality of Godhead. इसीलिए भगवान अनिमिष, विद इन नो सेकेंड, भगवान की एक शक्ति है माता भद्रकाली, उन्हीं भगवान की एक शक्ति, भगवान वहां प्रकट हो गए। आपने देखा द्रौपदी, द्रौपदी ने जैसे ही भगवान का ध्यान किया, राइट, जैसे ही उस सभा में सब लोग उनका चीरहरण कर रहे थे, अग्रे कुरूणाम अथ पांडवानां दुःशासनेन हृतवस्त्रकेशा तदाक्रोश, जैसे उस सभा में कहते हैं अग्रे कुरुणाम, कौरव थे वहां,
और पांडव थे, उन सबके सामने दुशासनेन हृतवस्त्र केशा, जैसे ही दुशासन ने उनके वस्त्र और केश को खींचने की कोशिश की, राइट, कृष्णा तदाक्रोश अनन्य नाथा गोविंद दामोदर माधवेति। कृष्णा, द्रौपदी को कृष्णा भी कहते थे क्योंकि कृष्ण उनको बहन मानते थे। कृष्णा तदाक्रोश अनन्य नाथा, तब द्रौपदी ने भगवान को अनन्य नाथ, मतलब एक्सक्लूसिवली भगवान कृष्ण ही सब कुछ है, कोई और नहीं है, आक्रोश पूरे हार्ट से, पूरे हृदय से उन्होंने बहुत जोर से चिल्लाया, भगवान कृष्ण का ध्यान किया, भगवान कृष्ण का नाम पुकारा बिल्कुल अनन्य भाव से, और तभी भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, है ना। तो ये मूड हम कोशिश करते हैं डेवलप करें, हो नहीं पा रहा है पर कोशिश तो करते रहना है हमेशा, है ना। तो इसीलिए जड़ भरत जी पूरा उस मूड में थे, माता काली प्रकट हो गई, उनको मार दिया, और उसके बाद जड़ भरत जी फिर से अपना काम में लग गए। ही डिड नॉट स्टिल हैव एनी रिग्रेट और एनीथिंग। अब कहते हैं जड़ भरत जी अपना टहल रहे थे, तो एक दिन वहां के जो राजा थे, उनका नाम था राहुगण, वो कपिल आश्रम जा रहे थे। कपिल आश्रम भगवान कपिल देव के आश्रम की तरफ ही जा रहे थे कि वहां पे कुछ ज्ञान प्राप्त करेंगे, वहां पे कुछ वेदांत की चर्चा होगी, है, इस भाव से वो वहां पे जा रहे थे। तो उनको पालकी में लोग लेके जा रहे थे, पैलेंक्विन, पालकी में उनको लेके जा रहे थे। तो उनमें से एक आदमी, चार लोग पालकी को ढोते हैं, तो उसमें से एक आदमी कम हो गया, तो वो देखने लगे कि अब किसको पालकी में जोड़ा जाए। तो फिर उनको जड़ भरत दिख गए। जड़ भरत दिख गए, देखा है तो हट्टा कट्टा अच्छा मोटा ताजा आदमी है, इसको बुला लेते हैं। तो उन्होंने उनको पालकी में लगा दिया। उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो पालकी उठा के चलने लगे। अब वो पालकी उठा के जब चल रहे थे, तो कहते चलते चलते, अब जड़ भरत तो ही वॉज टोटली अलर्ट, तो वो 2 फीट 3 फीट आगे देख लेते थे। वो देखते थे कोई कोई चींटी तो नहीं है, कोई और प्राणी तो नहीं है। अब वो पालकी लेके चल रहे थे। अब आप देखिए, आप पैलेंक्विन लेके जा रहे हो, 3 आदमी ठीक से चल रहे हैं, एक आदमी कभी इधर पैर रखेगा कभी इधर पैर रखेगा, तो पालकी ऊपर नीचे होने लगी। अब पालकी ऊपर नीचे होने लगी तो राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा ये सब क्या हो रहा है, तुम ठीक से चलो। अब जैसे ही राजा ने कहा ठीक से चलो, तो जो 3 जो थे, वो जो थे बंदे, उनको लगा कि इसकी वजह से हमें भी पिटाई हो जाएगी। उन्होंने पहले ही राजा को सफाई देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा देखो महाराज, हम तो 3 ठीक से चल रहे हैं, ये जो नया आदमी अभी जोड़ा गया है इसमें, इसकी वजह से गड़बड़ हो रही है, ये ठीक से नहीं चल रहा है, इसकी वजह से पालकी इधर उधर हिल रही। अब वो महाराज ने, राजा को पता तो था ही कि एक आदमी की वजह से गड़बड़ हो रही है। अब राजा ने सोचा शायद ये सुन के जड़ भरत जी को समझ आ जाएगी, लेकिन जड़ भरत जी के ऊपर फिर भी कोई असर नहीं पड़ा। अब जड़ भरत जी अपने हिसाब से चल रहे, तो कहते राजा को अब थोड़ा क्रोध आ गया। तो राजा ने उनको बड़े सार्कास्म में बात कही। तो राजा ने उनसे कहा, ओहो, तुम थक गए होगे, तुम थक गए होगे, देखो तुम अकेले ही इस पालकी को लेके चल रहे हो, इतना दूर तक तुम अकेले ही जा रहे हो, तुम्हें थकावट हो गई हो। सार्कास्म में किसी को बोल रहे हैं ना, है ना। अब आप किसी को काम के लिए बोलो, वो काम ना करा, बोलो ओ हाँ तू बैठ जा बैठ जा, थक गया, वो बहुत काम कर लिया ना ऐसे ही बोलते हैं ना। तो उसने उसको सार्कास्म में बोला जड़ भरत जी को। अच्छा, फिर भी जड़ भरत जी को कोई असर नहीं हुआ। फिर उसने उसको बोला कि देखो तुम कितने दुबले पतले हो, तुम बूढ़े भी हो रहे हो, तुम्हारे हाथ पैर भी कितने कमजोर हैं, जबकि ही वॉज लाइक अ बुल। तो उसने कहा देखो तुम्हारे हाथ पैर कितने कम। फिर भी जड़ भरत जी को कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उन्होंने कहा मुझे लगता है ये 3 लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं। फिर वो नमक छिड़क रहे थे कि अभी इनको क्रोध आएगा, ये 3 लोग तुम्हारी मदद नहीं कर रहे हैं, तुम्हें अकेले ही पालकी लेके चलना पड़ रहा है। जड़ भरत जी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ, वो चुपचाप सुन के रह गए, चुप रह गए। अब थोड़ी दूर चले, फिर पालकी डगमग होने लगी। अब फिर डगमग होने लगी तो राजा को गुस्सा आ गया। अब राजा ने गुस्से में फिर अब जड़ भरत को उन्होंने डांटा, और राजा ने उसको डांट के कहा जड़ भरत को कि तुम जिंदा दिख रहे हो, वैसे तो जिंदा दिख रहे हो, तुम मर गए हो क्या? यू लुक अलाइव, लेकिन मुझे लगता है तुम मर चुके हो। फिर भी जड़ भरत जी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। स्टिल ओके, वो फिर भी अपनी चाल से चल रहे थे। फिर उन्होंने उसको कहा तुम नहीं जानते मैं तुम्हारा मास्टर हूं, आई एम द किंग एंड यू आर माई सर्वेंट, तुम मेरे गुलाम हो। फिर भी जड़ भरत के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। आप इमेजिन करो, आप किसी को डांटे जा रहे हो, उसकी तरफ से कोई रिएक्शन ही नहीं आ रही है।
तो जड़ भरत जी ही वॉज अनअफेक्टेड। फिर राजा ने कहा ठहर जा, अब मैं तेरी पिटाई करूंगा तब तुझे समझ में आएगी, तुम पागल हो गए हो और तुम्हें पिटाई ही चाहिए, पिटाई होगी तभी तुम ठीक होगे। अब इस तरीके से राजा ने उनको बोला, जड़ भरत जी को। जड़ भरत जी के ऊपर अभी भी कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन अब कहते हैं जड़ भरत जी आउट ऑफ कंपैशन टुवर्ड्स द किंग, अब जड़ भरत जी ने बोलना शुरू किया। तो अब जड़ भरत जी उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं, इन पे आप थोड़ा ध्यान दें। दिस विल फॉर्म द बेसिस फॉर आवर नेक्स्ट चैप्टर। अब वो ज्ञान की बात उनको बता रहे हैं राजा को। तो उन्होंने सबसे पहले क्या कहा उनसे कि तुम्हें तुम्हें थकावट हो गई है क्या? आर यू फटीग्ड? तुम अकेले इस पालकी को लेके चल रहे हो? तो जड़ भरत ने कहा कि महाराज आपने ठीक ही कहा, वैसे तो आपका जो सार्काज्म है वो ठीक है, जो थकावट है वो तो शरीर को ही हो रही है, मेरी जो आत्मा है उसे तो कुछ नहीं हो रहा है। माई सोल इज डिफरेंट फ्रॉम माई बॉडी, क्योंकि शरीर ही इस पालकी को ढो रहा है और शरीर ही एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, तो शरीर को थकावट हो सकता हो गई। राजा को समझ में नहीं आया क्या बोल क्या रहा है? फिर उन्होंने उससे कहा कि महाराज आपने, पहले तो उन्होंने ये कहा कि आपको थकावट हो गई है, फिर उन्होंने उनको कहा कि तुम्हारे हाथ पैर लग रहा है दुबले पतले हैं, तुम्हारे शरीर में कोई जान नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो मटेरियल बॉडी है, एवरीथिंग हैज इट्स बिगनिंग एंड एवरीथिंग हैज इट्स एंड। जैसे उन्होंने कहा कि तुम मर गए हो क्या, तो उन्होंने कहा महाराज ये भी आपने ठीक कहा, क्योंकि शरीर है, मटेरियल है, इसको इसका एक बिगनिंग भी है, इसका एक एंड भी है। अभी भी राजा को समझ में नहीं आया ये क्या बोल रहे हैं। फिर उसके बाद उन्होंने उससे कहा कि महाराज जैसे आपने मुझसे कहा कि आप मेरे मास्टर हो, मैं आपका सर्वेंट हूं। उन्होंने कहा ये तो महाराज कोई बात नहीं है, बिकॉज आज आप मेरे मास्टर हैं, मैं आपका सर्वेंट हूं। टुमारो आई कुड बी योर मास्टर एंड यू कुड बी माई सर्वेंट। राजा को बोला ये क्या बोल रहे हैं। उन्होंने कहा अदरवाइज देर इज नो, मास्टर और सर्वेंट का सोल लेवल पे तो कोई है ही नहीं कॉन्सेप्ट। शारीरिक लेवल पे जो कन्वेंशनल है, मटेरियलिस्टिक, उसमें हम लोग ये सब जो डेजिग्नेशन है, राइट। और भक्ति की पहली स्टेप क्या है? रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में यही भक्ति की डेफिनेशन देते हैं। तो सबसे पहले लाइन वो यही कहते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सभी उपाधियों से जो मुक्त हो चुका है। अभी वो देह के लेवल पे, बॉडी के लेवल पे ये डेजिग्नेशन है ना, मास्टर की, सर्वेंट की, राइट। कोई डायरेक्टर है, कोई टीचर है, कुछ भी है, सो एंड सो ऑन, ऑल दीस डेजिग्नेशंस। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, अगर आप हम सब उपाधियों से हम मुक्त हो गए हैं, सब उपाधियों को हमने भुला दिया है, वी आर अवे फ्रॉम द बॉडी लेवल। तो उन्होंने कहा कि आज मैं सर्वेंट हूं, आप मास्टर हो, टुमारो आई कुड बी मास्टर एंड यू कुड बी माई सर्वेंट। और फिर उन्होंने फाइनली कहा कि यू कॉल्ड मी ए मैडमैन, और आपने मुझे कहा कि आप मुझे मारोगे। तो उन्होंने कहा कि आई एम सेल्फ रियलाइज्ड, तो मुझे शरीर से कुछ लेना देना ही नहीं है। एक सेल्फ रियलाइज पर्सन के आप शरीर को पीटोगे तो क्या होगा? मुझे तो कुछ नहीं होगा। और अगर मैं पागल हूं, और अगर आप किसी पागल को पीटते हो, तो पागल को पीटोगे तो पागल ठीक तो नहीं होगा, ही विल बिकम इनसेन, राइट। अब जैसे ही भरत महाराज ने, जड़ भरत जी ने बोला, कहते राजा की तो आंख खुल गई, और राजा एकदम से पालकी से नीचे उतरे और जड़ भरत के पैरों में गिर गए, और उनके पैरों में गिर के उनसे पूछने लगे कि आप कौन हो, हु आर यू? आपने ये सब बातें बोली, आपने ये सब बताया, आप कोई नारायण तो नहीं हो भगवान, आप भगवान दत्तात्रेय तो नहीं हो, या भगवान स्वयं कपिल देव तो नहीं हो? मैं कपिल जी के आश्रम में जा रहा था, कहीं भगवान कपिल तो खुद आपके रूप में मेरे सामने तो प्रकट तो नहीं हो गए? क्योंकि भगवान कपिल देव ने सांख्य योग का ज्ञान दिया है, तीसरे कैंटो में हमने पढ़ा था। तो उन्होंने कहा आप कौन हो, और आप कैसे इस वेश में चल रहे हो? कहते हैं उन्होंने सिर्फ एक लंगोट पहना हुआ था, और उनका जो जनेऊ था वो भी काला हो गया था, और लंगोट भी गंदा था, और पूरे शरीर पे मिट्टी मिट्टी लगी हुई। उन्होंने कहा आप हो कौन? इन डिस्गाइज आप ऐसे घूम रहे हो, यू मस्ट बी सम ग्रेट पर्सनैलिटी, आप मुझे बताएं आप कौन हो, और मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। और तब वो आज का श्लोक बोलते हैं, ना हम विशंके सुरराज वज्रा, ना हम विशंके
सुरराजवज्रा नात्रक्षशूलान् न यमस्य दण्डा नाग्नर्कसोमा निलवेत पास्त्रा शंके भृशं ब्रह्म कुलावमाना। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल प्रभु जी माता जी। इसलिए कई बार सोच समझ के किसी से बात करनी चाहिए। मालूम नहीं किसके रूप में कौन कौन आ रहा है। हमें कुछ नहीं पता हमारे पूर्व जन्म में हमारी क्या स्थिति रही होगी। राइट, वी ऑल हैव एक्सटर्नल पर्सनैलिटी, बट वी ऑल हैव एन इंटरनल पर्सनैलिटी ऑल्सो, इंटरनल डिस्पोजिशन ऑल्सो। राइट, तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। कई बार खासकर धाम में जाते हैं, जगन्नाथपुरी जाएं आप, वृंदावन जाएं आप, अयोध्या जाएं, मालूम नहीं कौन किस रूप में घूम रहा है। सो वी हैव टू बी वेरी अलर्ट। तो यहाँ आप, लेकिन क्योंकि कहते हैं ये राजा जो थे जड़ भरत राहुगण, इनको भी भगवान एब्सोल्यूट ट्रूथ की तलाश थी, इसीलिए तो कपिल आश्रम जा रहे थे। ही वॉज सर्चिंग फॉर भगवान। लेकिन जैसे उन्होंने जड़ भरत जी की बातें सुनी, पालकी से नीचे उतर गए और उनके चरणों में गिर गए कि आप कौन हैं, आप बताइए, अपने बारे में आप मुझे बताइए, मेरे से बहुत बड़ा अपराध हो गया, मैंने इतनी गलती कर दी आपके बारे में। और फिर जड़ भरत जी से उनका संवाद होता है। तो अब फिर रहुगणा उनके सामने अपने प्रश्न रखते हैं। अब वो उनका इस बात का जवाब देते हैं, एंड दिस विल फॉर्म द बेसिस ऑफ नेक्स्ट चैप्टर। आप इसको थोड़ा ध्यान से सुने। राइट, तो अभी तक क्या थे, हमने जो 5 पॉइंट हमने कवर किए, इफ यू रिमेंबर, आप इनको ट्राई टू थिंक अबाउट इट, थोड़ा कॉन्टेम्पलेट करें इनके बारे में। तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि राहुगणा ने उनको कहा कि आप थके हुए लग रहे हो बाय कैरिंग द पैलेंक्विन अलोन, पालकी को अकेले उठा के आप चल रहे हो, इसलिए आप थोड़े थके हुए लग रहे हो। लेकिन जड़ भरत जी ने क्या जवाब दिया, मैं तो एक स्पिरिट सोल हूं, मैं तो एक आत्मा हूं, और जो शरीर से डिटैच है। राइट, और जो लोड है वो तो बॉडी कैरी कर रही है, तो आत्मा से तो इसको कोई लेना देना नहीं। अब उसका जवाब देते हैं राहुगणा, अब उसके जवाब में प्रश्न करते हैं, और इट मे साउंड वेरी राइट टू अस। अब राहुगणा जी कहते हैं जड़ भरत जी से कि मेरा प्रश्न ये है, आपने जैसे कहा कि शरीर कैरी कर रहा है, आत्मा का उससे लेने देना नहीं है। उन्होंने कहा लेकिन सामाजिक व्यवहार में आत्मा कैसे अलग रह सकती है? अगर शरीर और इंद्रियां किसी चीज को झेल रहे हैं, किसी परेशानी में है, तो सोल तो उसमें अटैच हो ही जाती है। और फिर उदाहरण देते हैं कि जैसे मान लीजिए एक बर्तन में आप पानी आपने गर्म करने के लिए रखा, और उसमें आपने चावल डाल दिया। तो उन्होंने कहा कि बर्तन नीचे आग लगाई आपने, बर्तन में पानी डाला, उसमें आपने चावल डाल दिए, लेकिन अग्नि की वजह से पानी गर्म हो जाता है, और पानी गर्म होने के बाद जो चावल है वो भी अंदर से पक जाता है। तो सिमिलरली उन्होंने कहा कि दिस बॉडी इज लाइक अ पॉट, एंड व्हेन दिस बॉडी सफर्स, जो हमारी जो इंद्रियां हैं, जो शारीरिक हैं, उनको जब कष्ट होता है, तो आत्मा उससे कैसे बच सकती है? बिकॉज सोल इज इनसाइड। जैसे चावल अंदर से पक जाता है, ऐसे तो जो हमारी आत्मा है उसको भी इफेक्ट होता होगा। अभी इसका इसका उत्तर आगे मिलेगा, आगे जड़ भरत जी इसका उनका उत्तर देंगे, वो बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, फिर दूसरा उन्होंने कहा कि यू आर वेरी ओल्ड एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग एंड स्टाउट। तो कहते हैं ये तो बॉडीली डेजिग्नेशन है, जो शरीर है तो भाई कमजोर है, स्ट्रांग है, कैसा है, ये तो उसके साथ हमारे हो जाता है। फिर तीसरा उन्होंने कहा था आर यू डेड, आप मर गए हो क्या, लेकिन आप जीवित दिख रहे हो। तो फिर उसका उन्होंने क्या उत्तर दिया कि जो मटेरियल है उसकी बिगनिंग भी है, उसका एंड भी है। राइट, जो शरीर है। तो ये बड़ा थोड़ा इट्स वेरी सटल, बट द पॉइंट दैट दे ट्राइंग टू टॉक अबाउट इज, और दैट दे आर डिस्कसिंग इज हाउ टू डिफरेंशिएट सोल फ्रॉम द बॉडी। ये हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। पकड़ में नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन एफर्ट तो करें थोड़ा बहुत। राइट, होपफुली by the end of it or by the end of next few sessions at least we will start thinking। अभी तक तो सोच में नहीं आता है, और जैसा ये सोच रहे हैं ऐसा ही वो सोच रहे हैं। अभी वही जैसे अर्जुन लड़ाई में यही सोच रहे थे, भगवान ने यही कहा, सोचयन अन्वशोचस्त्वम,
आप जो नहीं सोचना चाहिए उसके बारे में आप सोच रहे हो। जो पंडित है वो ऐसा नहीं कहते। एक तरफ तो आप कह रहे हो कि शरीर है, फिर एक आत्मा है, आप उनको मारोगे है तो उससे प्रोजनी खराब हो जाएगी है। ये कुछ सोचने की बात नहीं है, क्योंकि आत्मा और शरीर, फिर भगवान ने आगे उसको सेकंड चैप्टर में बड़े अच्छे से उसको डिटेल में समझा। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी रहुगणा जी की भी यही क्वेरी है और हमारी सबकी भी यही क्वेरी होती है। वो यही कह रहे हैं कि सोल और शरीर, रहुगणा जी क्या कह रहे हैं, अगर शरीर, if body is going through these taps, these various miseries through senses and all, if senses are experiencing that, then how can soul be unaffected? ये रहुगणा जी कह रहे हैं। लेकिन जड़ भरत जी ने उनको कहा कि नहीं, जो सोल है उसका बॉडी से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, आगे इसके ऊपर और वो इलेबोरेट करेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने ये भी कहा, अब एक और अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट, उन्होंने कहा कि आपने कहा कि मास्टर और सर्वेंट, आज मैं आपका सर्वेंट हूं, आप मेरे मास्टर हैं, कल मैं आपका मास्टर हो जाऊंगा, फिर दंड देने की बात कहां से आ गई। तो उसमें फिर रहुगणा उनको कहते हैं, जड़ भरत जी को, कि एज ए किंग इट इज माई ड्यूटी, एज ए किंग इट इज माई ड्यूटी टू पनिश द सिटीजन्स, राइट। एज ए किंग इट इज हिज ड्यूटी। उसने कहा कि अगर मैं पनिश नहीं करूंगा तो एज ए राजा मैं अपनी ड्यूटी नहीं कर रहा हूं। जो हम लोग अक्सर कहते हैं, भाई हम तो गृहस्थ में, हमारा तो काम बीवी बच्चों को पालना है, परिवार की देखभाल करनी है। वेरी गुड एक्सक्यूज, समटाइम यू यूज दिस, क्योंकि भजन में थोड़ा सा हमें छोड़ना पड़ेगा। लेकिन हम लोग जस्टिफाई कर देते हैं और सब एक साथ मिलते हैं, देखो गृहस्थ आश्रम बहुत मुश्किल आश्रम है। कोई होता है स्टैंडर्ड, और गृहस्थ मतलब सबसे डिफिकल्ट है। एक बार गुरु महाराज बता रहे थे कुछ, हमने कहा कि भी ऐसे हो रहा है, उन्होंने कहा क्या बात करो महाराज, आप गृहस्थ लोग हम क्या नहीं करते हैं, आप लोग घर पे आते हो, आप लोग को प्रसाद खिलाते हैं, आपका प्रोग्राम स्पॉन्सर करते हैं, कथा का अरेंजमेंट करते हैं, गृहस्थ क्या नहीं कर रहा है, दिन रात मरता है, नौकरी करता है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो वो तो अपनी लिस्ट गिनाने लगे। तो सिमिलरली अभी जड़ भरत, राहु गणेश जी यही कह रहे हैं जड़ भरत जी से कि एज ए किंग इट इज माई ड्यूटी। वर्णाश्रम धर्म में भी यही कहा गया, स्वधर्मम आराधना अच्युतस्य, जो अपने धर्म का पालन करना ही अच्युत भगवान की आराधना है। और उनकी आराधना करने से जहाती अघो अघम, जो जितने भी सिंफुल रिएक्शन सब खत्म हो जाते हैं जब हम अपने धर्म में रह के उसका पालन करते हैं। अभी आगे इसका आंसर देंगे। साउंड्स लाइक ए वेरी वैलिड पॉइंट, राइट। अगले चैप्टर में इट विल बी क्लैरिफाइड। तो ये उन्होंने प्रश्न किया। और फाइनली फिर जड़ भरत जी से रहुगणा जी एक और अपील करते हैं। उन्होंने कहा कि यू आर नॉट अफेक्टेड बाय माय ऑफेंसेस because you are self-realized. This is another important point for us. But you are not affected, you are self-realized, you are liberated. But because of offending you, I have committed a great sin. Please help me how I can be liberated from this sin. Understand? आपने उनको गाली दी, उनका कोई फर्क नहीं पड़ता। आप किसी को गिफ्ट देते हो, बर्थडे का वो गिफ्ट ले लेते हैं, अच्छी बात है। इसलिए आप किसी को गाली दे रहे हो, गाली नहीं ले रहा तो नहीं ले रहा। It's up to him, he is not accepting your gift. लेकिन आपने तो दे दिया, राइट। तो वो फिर राहुगणा कह रहे हैं कि मैंने जो आपके द ऑफेंस दैट आई हैव कमिटेड एट योर लोटस फीट, इसलिए आप प्लीज मुझे आप गाइड कीजिए हाउ आई कैन बी सेव्ड फ्रॉम द सिंफुल रिएक्शंस ऑफ द ऑफेंसेस कमिटेड बाय मी। तो यहां तक अब हम इसको पॉज करते हैं। दैट कंक्लूड्स चैप्टर 9 एंड 10। अब आगे के चैप्टर में इनकी कन्वर्सेशन चलेगी, राइट। तो बिफोर वी स्टॉप, एनी क्वेश्चंस, एनी कमेंट्स? ठीक है, थोड़ा इंटरेस्ट बन रहा है सबका, आप सब फॉलो कर रहे थे, बोर तो नहीं हो रहे थे, है? ठीक है, मुझे मेरा एक क्वेश्चन, यस मैम। इससे थोड़ा सा वो अलग है, जैसे